Hey, Namaskar, welcome and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12 083 Computer Science, in which we are going to learn Python programming. In the previous session, I have completed the introduction of your syllabus, in which I clear what is the theory pattern and what is your practical pattern, and how much you have to be complete the theory portion and have to be complete the practical session. So this is your first class of your chapters and the unit first, computational thinking and programming, in which we are going to be learn the chapter 1 Python revision tool. So let's get started. In the previous class 11th, you have completed the Python's many concept, just like what are the keywords, what are the values, what are the constants, what are the strings. There are many things that you have already completed in the class 11th. So this chapter name is Python revision tool 1, as it was the revision of your class 11th syllabus. So what is the chapter? Firstly, we have to be learn about the tokens. What are the tokens? So we have to slowly complete the definition of the tokens. What are the tokens? Tokens are the smallest individual unit in program, not of program. In program means जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, इन 11th क्लास यू हैव मेड अ लॉट ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स. जैसे कि हम लोग पाइथन के प्रोग्राम बनाते हैं तो उनमें जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, यानी अकेली छोटी छोटी सी जो यूनिट होती है जिनसे मिलके पाइथन का प्रोग्राम बनता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं. यानी पाइथन की प्रोग्रामिंग में जो छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं वो हमारे टोकन्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट? फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स. व्हाट आर द कीवर्ड्स? The keywords are having the reserved words in the Python programming. Reserved word means the definition of keyword is exactly definition of keyword is that the some reserved word in Python programming that have some special meaning and work in the program is known as the Python keywords. There are 33 Python keywords present in the Python programming. From the sum of our first, for example, if. When we are making Python program, we give the condition na, if this is true, then follow is, if else follow it. Then if और else क्या है, ये हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? रिजर्व्ड वर्ड हो गए, यानी रिजर्व्ड कीवर्ड्स हो गए हैं. उसके बाद एलिफ, आफ्टर दैट इफ एल्स एलिफ ट्रू, आफ्टर दैट ब्रेक स्टेटमेंट. जब भी हम लूप को ब्रेक करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं. आफ्टर दैट इफ एल्स एलिफ ट्रू ब्रेक. देयर आर मैनी मोर कीवर्ड्स लाइक ट्रू हो गया है, एलिफ हो गया है, एल्स हो गया है, और इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया है, फॉल्स इज ऑल्सो देयर, etc. There are many 33 keywords present in your book. You have to be keep in your mind which are the 33 keywords that will be asked to you in the multiple choice question, that which of the following is not the keyword, which of the following is the keyword of the Python. There are many keywords that we are using in Python program, then we cannot use it in the as a variables. अभी तक के लिए इतना समझिए कीवर्ड क्या होते हैं. जो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, उनको पाइथन के कीवर्ड्स बोलते हैं. ये हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते हैं बेटा. कीवर्ड्स क्लियर हुआ. सेकंड टोकन हमारा क्या होता है? लिटरल्स. लिटरल्स क्या होते हैं? इनको हम वैल्यूज बोलते हैं. वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गए. स्ट्रिंग क्या होते हैं? जब भी हम पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं, देखो लिटरल्स जो होते हैं बेटा हमारे, वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं. वैल्यूज जो होती है हमारी वो टू टाइप की होती है, यानी कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यूज जो होती है उनको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं. जो चेंज नहीं हो सकती, अनचेंज्ड वैल्यू होती है, जो रिमेन्स सेम, दे आर नोन एज द लिटरल्स. मींस जैसे कि हमने ए लिया और इसमें एक वैल्यू असाइन करा दी 5, ये हमारा क्या हो गया? लिटरल हो गया. कैसा टाइप का लिटरल हो गया? हमारा स्ट्रिंग लिटरल हो गया. सॉरी, ये वेरिएबल होता है. एग्जाम्पल के लिए हमने एक वेरिएबल लिया ए, ये वेरिएबल था. उसके बाद में हमने यहाँ पे दे दिया हेलो वर्ल्ड. ये हमारा क्या है? और हमने प्रिंट करने के लिए दे दिया है. क्या प्रिंट करना है आपको?
जो भी इसने लिखा है, हेलो वर्ल्ड एज इट इज, ये आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ये हमारा क्या हो गया, लिटरल हो गया। एस लिटरल मींस स्ट्रिंग लिटरल हो गया। जब भी अल्फाबेट की बात होती है तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी स्ट्रिंग लिटरल्स हो गए, स्ट्रिंग वैल्यूज हो गई हमारी। ये हमारा सिंगल लाइन लिटरल हो गया। जब भी हम इसको डबल लाइन करते हैं तो हम एक स्लैश दे देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, डबल लाइन। डबल स्लैश का मीन्स हो जाता है कमेंट बेटा। सिंगल स्लैश दे देते हैं हम लोग और नीचे कुछ लिख देते हैं तो वो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग हो जाती है। यानी एक से ज्यादा लाइन में लिखी हुई लिटरल्स को, वैल्यूज को हम लोग मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स बोलते हैं। ये हमारे लिटरल्स हो गए। अब लिटरल्स की अगर बात की जाए तो लिटरल्स के साथ में हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं कि लिटरल्स में हम लोग वो वैल्यू लेते हैं जिनको हमें आगे चल के ऑपरेट कराना होता है या जिनके ऊपर हमें कुछ वर्क करना होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिटरल्स के बाद, क्लियर हो गया। लिटरल्स के बाद हम लोग ऑपरेटर्स की बात कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपके बुक में सीक्वेंस कुछ और हो सकता है और हो सकता है कि मैंने सीक्वेंस कुछ और बताया हो। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिनकी हेल्प से हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, जिनमें हम कंप्यूट करते हैं यानी कैलकुलेट करते हैं समथिंग, उनको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। जिसमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, अच्छा लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, जिसका सिंबल होता है ऐसा, और, नॉट, ये हमारे क्या हो जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल टू का साइन में डबल इक्वल लगता है। सिंगल इक्वल जो लगता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी चीज को असाइन कराने के लिए हम यूज करते हैं। हमने यहाँ पे ए को क्या कराया था, इसके अंदर असाइन कराया था, मींस ए की वैल्यू क्या है, ये हेलो वर्ल्ड जो है वो ए की वैल्यू है, ए इसके अंदर असाइन हो गया है हमारा। इस टाइप के ऑपरेटर को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हमें बोलना होता है ए इसके इक्वल है, मींस हमें जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी के बराबर करनी होती है तो हम लोग डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, उसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। और सिंगल इक्वल जहां होगा वहां असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये अपने माइंड में आप ध्यान रखिएगा। रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा डिवीजन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है, मॉड्यूल होता है, एक डिवीजन होता है। मॉड्यूलस में क्या मिलता है, हमें रिमाइंडर मिलता है, और डिवीजन में हमें क्या मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। इनका यूज हम तब बताएंगे बेटा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी तक के लिए इतना क्लियर करके रखना कि कौन सा ऑपरेटर होता है, और सबसे मेन टॉपिक आप टोकन्स पे फोकस रखना। ये आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है, यानी सबसे फर्स्ट बेसिक्स है जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हो। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस क्या होते हैं, पाइथन में कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे पंक्चुएशंस होते हैं जिनका हम यूज पाइथन प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। लाइक कॉलन का यूज किया जाता है टर्मिनेट करने के लिए, सेमी कॉलन का हम लोग यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं जब लिस्ट बनाते हैं, टपल का स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं जब टपल्स बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं जब हम लोग लिस्ट वो डिक्शनरी बनाते हैं। इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, सारे पंक्चुएशन मार्क्स हो गए। हम लोग फुल स्टॉप का भी यूज करते हैं जब हम लोग एंड करते हैं। एंड मीन्स वो कंटेंट वाला एंड नहीं हुआ कि हम लोगों ने यहाँ लग दिया और फुल स्टॉप का, नहीं। जब हम प्रोग्रामिंग में कोई फंक्शन यूज करते हैं तब हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ये हमारे क्या हो गए, पंक्चुएशन मार्क्स हो गए। अब हम वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या का मीन्स होता है कि जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है जिसके अंदर हम किसी चीज का असाइनमेंट करते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं तो, एग्जाम्पल से अगर समझाएं तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग का यूज करना स्टार्ट किया, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया कि a इक्वल टू क्या है मैम 5 है, b इक्वल टू क्या है 6 है। अब हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सम किया और इक्वल टू क्या किया, a प्लस b, ठीक है। सम का वैल्यू क्या हो गई, a प्लस v हो गई है। अब हमने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने में हमने क्या लिखा है, प्रिंट सम, और ये हमारा क्या हो गया, a और प्लस b जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर करने के बाद हमें एक और चीज समझ में आई बेटा यहाँ पे, क्या कि a के अंदर मैम ने वैल्यू को असाइन कराया, 5 को असाइन कराया।
बी के अंदर मैम ने 6 को असाइन करा दिया। ये तो हमारे लिटरल्स हो गए थे, कॉन्स्टेंट्स मतलब फिक्स्ड वैल्यू थी, ये हमारी चेंज नहीं होनी थी ड्यूरेशन द जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। बट ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी वेरिएबल्स हैं जिनको हमने किसी के अंदर असाइन कराया है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है, हम लोग यूज ही इसीलिए करते हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर किसी कांस्टेंट को क्या कर सके, असाइन करा सके, जिससे जो कांस्टेंट की वैल्यू है, कभी कभी अभी तो हमने 5 लिखा है, कभी कभी कांस्टेंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनको छोटा करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं, उनके अंदर असाइन कर देते हैं। तो जब भी हमें जब कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग किसको कॉल करते हैं, वेरिएबल्स को कॉल कर लेते हैं बस। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, इनफ हो जाता है। वेरिएबल्स हम लोग बहुत सिंपल लेते हैं, बट वेरिएबल्स लेने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, कि वेरिएबल्स में आप क्या क्या कर सकते हो। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होने चाहिए। आप इस तरीके का वेरिएबल ले सकते हो, राइट है, बट आप टू नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट है, आपके वेरिएबल्स कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, दे कैन नॉट हैविंग एनी स्पेशल कैरेक्टर, इनमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को छोड़ के किसी स्पेशल कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना ही किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा a डॉट बी, ये आपका नहीं बन सकता वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर होल्ड कर रहा है। अगर हम ये a अंडरस्कोर बी कर देते, यस इट इज ट्रू, हम ऐसा वेरिएबल ले सकते हैं। अंडरस्कोर ले सकते हैं जब भी हमें स्पेस चाहिए हो तब। अंडरस्कोर हम स्पेशल सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर की वजह से नहीं ले रहे हैं, जब भी हमें स्पेस रिक्वायर्ड होता है, या तो हम बिना स्पेस के लिखें, या हमें स्पेस रिक्वायर्ड है हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, हमारा पास जैसे कि स्मॉल a स्मॉल b और c, मैंने बताया था जैसा कि हम लोग स्पेस नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारा रूल क्या हो जाएगा, गलत, हम इसमें वेरिएबल नहीं ले सकते। अगर हमें स्पेस चाहिए तो अंडरस्कोर लेके सी, ये हमारा क्या हो गया। कुछ कंडीशंस होती हैं वेरिएबल लेने की, जब भी आप वेरिएबल ले रहे हो तो नंबर से स्टार्ट ना करो, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, ना ही स्पेशल सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे मेन चीज एक और होती है पाइथन में आपकी, कि पाइथन जो है हमारा वो केस सेंसिटिव होता है बेटा। केस सेंसिटिव का मीन्स क्या होता है, मीन्स हमें पता है ये दोनों चीजें ए है, मैम ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, हमें तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों ए है, बट पाइथन के लिए दोनों चीजें डिफरेंट है, ये दोनों ए नहीं है उसके लिए, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। आप जब भी अगर आपने कोई एक वेरिएबल ए के नाम से ले लिया है और आप सम जब कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ए प्लस बी कर रहे हो, तो वो देखेगा कि बी की वैल्यू ठीक है, उसे समझ में आ रही है, पर ए वो पूरा ढूंढेगा पर उसे ए कहीं नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर देगा, रिजल्ट में आपके एरर दे देगा, आउटपुट में एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये ए एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि आपको क्या करना है यहाँ पे स्मॉल, ये केस सेंसिटिव है। अगर आप अपर केस और लोअर केस आप दोनों यूज करोगे तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, एक एरर आ जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर करने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू टोकन्स देख लेते हैं कि किस तरीके से एक प्रोग्राम में सारे टोकन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, फॉर A1 इन रेंज, रेंज दे दी गई है 1 से लेके 10 तक, और बोल दिया गया है प्रिंट A1 if A1 is greater to 3, देन प्रिंट क्या करना है, ये हाफ प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है किसी भी चीज का, इतना याद रखिएगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए टोकन्स क्या होते हैं। अच्छा, जब भी सेमीकोलन आता है ना तो इंडेंटेशन छोड़ना पड़ता है हमें, ये इंडेंटेशन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ये इंडेंटेशन छोड़ा है। कभी बोलते हैं, कभी आप सिस्टम पे देखिएगा जब आप प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो आप ये जब कॉलन जब देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इतना स्पेस छोड़ के आगे लिखेगा, क्यों? ये इंडेंटेशन छोड़ना होता है। कभी कभी ये भी एरर आ जाता है बेटा, इंडेंटेशन एरर आता है प्रोग्राम में हमारे। प्रैक्टिकल जब मैं कराऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, इस सेशन का भी मैं एक प्रैक्टिकल लूंगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। जबकि इसमें अभी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, हम टोकन्स के बारे में सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट फिर भी मैं एक स्मॉल प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है 4, ठीक है, टोकन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, हमारे वेरिएबल है, टोकन नंबर सेकंड। ये क्या है, हमारा ऑपरेटर है,
टोकन नंबर थर्ड, ये क्या है हमारे पंक्चुएशंस हैं। टोकन नंबर 4। अब लास्ट में क्या बचा, ये हमारे क्या है कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे क्या हो गया टोकन नंबर 5, यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन इन योर पाइथन प्रोग्रामिंग दैट आर द स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। ये क्या है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, अकेली है ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट एंड ऑल्सो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। ये हमारे क्या हो गए पाइथन प्रोग्राम के 5 टोकन हो गए। ये हमारा बेसिक है बेटा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। अगर ये आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया, आगे आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि कहाँ टोकन, हम किस तरीके से कौन सा टोकन यूज करते हैं, कब ऑपरेटर यूज करते हैं, कब हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने होते हैं, कब हमें कीवर्ड का यूज करना होता है, कौन से स्ट्रिंग, कौन सा वेरिएबल हमें कब बनाना होता है, कौन से कॉन्स्टेंट पे कितनी लेंथ लेनी होती है, ये बहुत मैटर करेगा आपकी प्रोग्रामिंग में। तो इतना क्लियर करिएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम में आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल का बताऊंगी फॉर श्योर। तब तक के लिए इतना। अच्छा, टोकन्स को हम लोग लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। लेक्सिकल यूनिट्स आर नोन एज व्हाट, tokens, keywords and etc etc. So this is enough for this today's class. In the next class we will meet in the practical session, and from the previous section you have to be complete the introduction class. So that is enough for the today. Bye bye and take care.